हिप्नोसिस में जाने की अवस्था होती है। हम शून्य से शुरू करेंगे। 1 ऊपर आते हुए, 2 और ऊपर आते हुए, 3 आसपास के वातावरण से परिचित होते हुए, 4 पूरी तरह से अवेक होते हुए, 5 1 2 3 4 5। अभी इसी वक्त अशिता का संपूर्ण शरीर और व्यक्तित्व एक रूप हो जाए। इंटीग्रेट 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 1 2 3 4 5। इंटीग्रेट इंटीग्रेट इंटीग्रेट। आशिता धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। 1 2 3 5। इंटीग्रेट 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 इंटीग्रेट। आशिता धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। And you will screen. Hand. Another email screen. You will take your hand and relax. And place the screen. Very important. You feel the left hand? Yeah. Okay. Close your eyes. Close. 5 4 3 2 1 2. Deep. Relax. Relax your body. Relax your mind. Relax your action. Relax. Relax your left hand. Relax your body. Relax your mind. Relax. 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 शेयर कर सकते हैं बट आफ्टर द ब्रेक, क्योंकि उसको थोड़ा सा भी 10-15 मिनट लगेगा नॉर्मल होने को।
बातचीत करने के लिए। उसके बाद आप उसके साथ बात कर सकते हैं कि उसका फीलिंग कैसा था, एक्सपीरियंस कैसा था, उसने क्या देखा, कैसे देखा, वो आप उसके साथ टॉक कर सकते हैं। ओके, Ladies and gentlemen, thank you so much for that. I know you have a lot of questions that you want to ask Rajni and questions that you probably want to ask Ashika. What they need is actually 20 minutes to just relax. Their energies are quite low right now. And in about 20 minutes, we can come back. You guys can have some refreshments. And any questions that you have for them, they'll be able to answer them. Of course, if you want to book your private sessions with Rajni Singhal ji, of course you can do that outside. There's a registration desk. And if you have any questions about the process, of course, they will be answered outside as well. Thank you. Being served outside, please help yourselves. We'll be sitting at the registration desk to take your bookings. Please feel free to come by. Thank you very much. We'll be back in about 20 minutes. Thank you. वो मारिया जी को फ्रांस में ले गए थे, मैं आपको फ्रांस में ले जाऊँ। हंसिए, डोंट बी सीरियस। क्या सुनना चाहेंगे या मैं अपने मन से कुछ सुनाऊं? हल्का सा 5 मिनट है? ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, नैनों
आए जिंदगी में बात बन गई। इश्क मजहब इश्क मेरी जात बन गई। माही बेआब सा दिल ये बेताब सा तड़पा जाए तड़पा जाए। नैनों की झील में उतरा था यूं ही दिल डूबा जाए डूबा जाए। होशो हवास अब तो खोने लगे हैं। हम भी दीवाने तेरे होने लगे हैं। हम भी दीवाने तेरे होने लगे हैं। तेरे मस्त मस्त दम में मेरे दिल का ले गए चैन। मेरे दिल का ले गए चैन। तेरे मस्त मस्त दम में मेरे मस्त मस्त दम में मेरे दिल का ले गए चैन। मेरे दिल का ले गए चैन। मेरे मस्त मस्त दम में मेरे मस्त मस्त दम में मेरे मस्त मस्त दम में मेरे मस्त मस्त दम में। Ladies and gentlemen, once again a round of applause. That was amazing music. Thank you so much, guys. That was really lovely. Well, for now, I'm assuming a lot of you have a lot of questions for Rajni Singhal ji, of course. If I can invite the two of you up here, and you can pretty much ask them anything you want. What I'm going to do is I'm going to pass the microphone to him, right there. And any questions you have, he'll pass the microphone on to you. And you can actually go ahead and ask your question. There you go. Closer? Yeah. Okay, your session, not that I'm criticizing you or anything, why did you not go from like ages, the first time you encountered Maria, you said it's 3 years old. Why did you not go very quickly, like 10 years now? It's 10 years. You are 10 years now. What's happening now? And then you are 15 years old. And now you are 20 years old. You went very slowly because in life, next day nothing happens. After 1 week, nothing happens. You know, in our life, it's it's like after 5 years something happens. So I was wondering why you dragged on so much instead of going quickly, to different ages. My name is Kamal. Kamal, thank you very much for question. It's a very good question. Because जब हम किसी को ट्रांसफर लेके जाते हैं तो जो उनका प्रॉब्लम है, क्योंकि एज ए थेरेपिस्ट मुझे साथ साथ चेक करना पड़ रहा है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम क्विकली 5 साल आगे 10 साल आगे लेके जाते हैं तो वो मिसहैपनिंग उससे पहले ही हो चुकी होती है, तो कई बार हमको वापस उसको लेके जाना पड़ता है। क्योंकि जब हम किसी को पास्ट लाइफ में लेके जाते हैं तो हमें खुद भी नहीं पता होता कि वो कौन सी एज में अपने आप को देखेगा। लकीली इनके साथ ये हुआ कि उन्होंने 3 साल की एज में अपने आप को देखा। कई बार पीपल अपने आप को 25 साल में देखते हैं, कई बार 50 साल में देखते हैं, कई बार 10 साल में देखते हैं, क्योंकि जो उनका प्रॉब्लम है, क्योंकि एक बार बीच में भी उन्होंने, आप लोगों ने सुना होगा कि बोला था कि वो शिप में हैं और स्कूल टाइम में कहीं जा रहे हैं, क्योंकि वाटर से अगर ब्रीदिंग से कोई कनेक्शन आ रहा है तो समटाइम की एज ए थेरेपिस्ट माइंड में वो टेकिंग रहती है कि कहाँ उसको मूव कराना है। क्योंकि वो टाइम पे भी मैंने जानबूझ के उसको रोका था, इसलिए 2-2 दिन के अंतर से भी हम लोग चलाते हैं, कई बार 10 साल के अंतर से भी चलाते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो सिचुएशन बार बार शिप की आ रही है, क्योंकि शी इज स्केयर्ड इन द शिप एंड द डार्कनेस एंड द ब्रीदिंग, क्योंकि लगता है कि अगर हो सकता है कि वो चीज़ 2-3 दिन में हो रही है, बिकॉज इसलिए कई बार स्लो चलना पड़ता है। क्योंकि इन केस कई बार केस में हम लोगों ने देखा है ऐसे 1-to-1 केस में कि हम लोग फास्ट मूव करते हैं, लेकिन वहाँ जाके देखते पीपल कुछ देख ही नहीं पाता, तो फिर वापस उसको लेके जाना पड़ता है। तो बिकॉज इसलिए स्लो ले जाना जरूरी है कि पूरा एक सेशन अपनी रिदम में जाए, क्योंकि हो सकता है कि वो अपने आप को 20 ईयर्स में देखते, लेकिन हो सकता है उनका डेथ 10th में हो चुका होता, तो बिकॉज फिर आपको मूव करना पड़ता है। तो एक रिदम जो चल रहा होता है और जो सिम्टम आ रहे थे वाटर के शिप के, बिकॉज उस हिसाब से आपको ब्रेक लेके चलना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो 10 ईयर्स में डाई हो गई, बिकॉज इसलिए क्योंकि जब 1-to-1 सेशन होता है
कई बार 4 आवर्स तक लगते हैं, 5 आवर्स तक लगते हैं, क्योंकि जो प्रॉब्लम क्लाइंट मेरे पास लेके आया है मुझे वो चीज़ ढूंढनी है, उसकी लाइफ में ढूंढनी है कि कौन सी एज में हुआ, क्या हुआ। और जो फोबिया के केसेस होते हैं उसमें उनको डेथ तक ले जाना कंपलसरी होता है, बिकॉज जब किसी भी इंसान की डेथ होती है तो जो भी उसकी मेमोरीज होती हैं वो उसके साथ ही जाती है, तो इसलिए वो बाद में आके दूसरी लाइफ में उसको डिस्टर्ब करती है। आपने शायद देखा होगा जब उनका डेथ का टाइम था, द बॉडी इज अ शिवर, द फीलिंग इज अ वेरी कोल्ड, द ब्रीदिंग का उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, तो जस्ट वो मोमेंट देना बहुत कंपलसरी होता है, क्योंकि चाहे तो मैं रोक सकती थी, उनको रिलैक्स कर सकती थी कि आप वो सफोकेशन मत लीजिए, वो ब्रीदिंग मत लीजिए, लेकिन जब तक उस डर को, उस प्रॉब्लम को आप नहीं बढ़ाएंगे, आप उसको कट नहीं कर सकते। वहाँ से वो कट करना जरूरी है, तभी अब आपको पता चलेगा आगे 1 वीक में, 15 डेज में उनको वो प्रॉब्लम आता है या नहीं आता। इसलिए वो स्लो चलाना जरूरी होता है। और एज ए थेरेपिस्ट हम लोगों को फर्स्ट ट्रेनिंग यही होता है कि एज ए थेरेपिस्ट हम लोग को बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि कोई क्लाइंट आता तो उसका प्रॉब्लम जब तक नहीं मिलेगा हम उसको ऐसा नहीं बोल सकते कि आपका 2 घंटे का टाइम खत्म हो गया, आप फिर हो जाओ। ओके, और कोई भी अगर क्लाइंट हमारे पास पास्ट लाइफ के लिए आता है तो एक थेरेपिस्ट ये डिसाइड करता है कि उसका प्रॉब्लम यही लाइफ से आ रहा है या पास्ट लाइफ से आ रहा है। ओके, क्योंकि वो काउंसलिंग इज अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि उसकी ये लाइफ का पूरा डाटा निकाला जाता है, उसकी पूरी हिस्ट्री ली जाती है, वो उसको क्या पसंद है, खाने में क्या पसंद है, किस तरह की ट्रैवलिंग पसंद है, रिलेशन कैसे हैं, हेल्थ प्रॉब्लम कैसा है, कोई सर्जरी हुआ है, एक एक चीज़ का डाटा नोट होता है। बिकॉज ये 2.5-3 घंटा काउंसलिंग में जाता है, क्योंकि जब वो पूरा काउंसलिंग का डाटा आपका रेडी होता है, उसके बाद जब आप पास लाइन में जाते हो तो चीज़ें आप मैच कर सकते हो कि ये लाइफ में वहाँ का कितना इफेक्ट रहा है। Get it my point? You satisfied? Thank you. Good evening. Rajni, that was an excellent hypnosis. Thank you very much. It was great to see this such a live presentation and actually see the voices change as you took her to childhood. आप थोड़ा माइक पास करेंगे? I wanted to clarify something. It was to do with when you're doing hypnosis, can it only work when you are as a human being? Yeah. Because that's when you have self-awareness. And from your experience, what does it take to be a human being all your lives? So just a clarification. Thank you. वापस एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे? As you are doing hypnosis, Yeah. I presume it only works when you are a human being in your past lives. Because if you are something else, you don't have the self-awareness. If you can clarify whether that is true or not. Secondly, what does it take to be a human being in your future lives? Yeah, clarification on that. Thank you. Your name? My name is Pradeep Shah. इसमें थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में आप लोगों को समझाना चाहती हूँ कि शायद आप लोगों को समझ में आए कि जब हम किसी भी इंसान को हिप्नोटाइज करते हैं या जो भी हिप्नोसिस होता है उसमें इंसान का जो कॉन्शियस माइंड होता है वो 10% काम करता है और जो सबकॉन्शियस माइंड है वो 90% काम करता है, क्योंकि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है उसमें हमारे पास्ट की सारी मेमोरीज होती हैं और पास्ट लाइफ की भी मेमोरीज होती हैं और इसी लाइफ की बचपन की से लेकर अब तक की सारी मेमोरीज होती हैं। जब किसी भी इंसान को हिप्नोटाइज किया जाता है तो उसके सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव किया जाता है और कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल किया जाता है। ओके, जब किसी का कॉन्शियस माइंड कंट्रोल होता है तभी वो हिप्नोटाइज होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। दूसरा ये कि एक तो पूरी तरह सेफ है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, कोई अल्कोहल नहीं है। दूसरा ये है कि आप इसको कितनी बार भी यूज़ कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हम किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए थेरेपी कराने आए हैं लेकिन हमारा कोई दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, क्योंकि कहाँ बॉडी में सबकॉन्शियस माइंड में क्या ब्लॉकेज हुई है, किस थॉट की वजह से क्या प्रॉब्लम हो रही है, आई डोंट नो। क्योंकि मैंने खुद मेरे क्लाइंट के ऐसे केसेस देखे हैं कि जो इतने साल से मेडिकली ट्रीटमेंट ले रहे थे और दवाइयाँ ले रहे थे, लेकिन जब सेल्फ हिप्नोसिस उनको कराया या हिप्नोटाइज किया तो डिफरेंट टाइप की चीज़ें क्यों हुई। दूसरा एक चीज़ मैं और बताना चाहती हूँ, काफ़ी लोग मुझसे एक सवाल पूछते हैं कि पास्ट लाइफ में कोई ज़रूरी नहीं है कि हम भूल भी नहीं होंगे, हम कुछ और भी हो सकते हैं।
हाँ, अभी तक 3 केस मेरे पास ऐसे हैं कि जहाँ पे पर्सन ह्यूमन बीइंग नहीं था। वन केस इज वन लेडी इज अ स्नेक, द सेकंड केस इज वन लेडी इज अ क्रो, एंड थर्ड केस इज वन लेडी इज द ओल्ड वुमन इज अ ट्री। ये पूरा एक साइकिल है। जब हम लोग ये बोलते हैं कि ट्री में लाइफ होती है, हाँ ये फैक्ट है कि ट्री में लाइफ होती है। जब एक कोई लाइफ शुरू होती है, उस सबसे पहले ट्री उस टाइप के पेड़ पौधों से लाइफ शुरू होती है। सेकंड इज एनिमल एंड बर्ड्स, थर्ड इज ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में भी एक सवाल ये आता है कि कोई जरूरी नहीं है कि एक आदमी आदमी ही बनेगा या एक लेडी लेडी ही बनेगी, उसमें भी 20% का रेशो चेंज होता है। समटाइम आप लोगों ने भी देखा होगा किसी मेल को देख के ये लगता है कि नहीं उसकी लुक लाइक इज अ फीमेल। ओके, समटाइम किसी लेडीज को देखते हैं तो लुक लाइक इज अ मेल, जस्ट लाइक इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी का आप सबको मैं एक सजेशन दे रही हूँ, आप एक बुक जरूर पढ़िएगा, इज अ बोर्न अगेन। वेरी इंटरेस्टिंग बुक। उसमें हमारे जितने भी सेलिब्रिटी हैं उनकी पूरी लाइफ के बारे में कि कैसे चीज़ काम करती है। और एक बुक और है, मैनी लाइफ मैनी मास्टर्स। या तो उससे आपको काफ़ी कुछ समझने को मिलेगा। और मैं इस टॉपिक पे बहुत देर तक बोल सकती हूँ, बहुत बातें कर सकती हूँ, लेकिन सुनने वाला चाहिए कि हमारा माइंड कैसे काम करता है। आप लोगों को एक अच्छी चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, वो आप करके देखिएगा। तो थोड़े एग्जांपल भी आपको दे सकती हूँ कि अगर एज ए हिप्नोथेरेपिस्ट हम लोग ये मानते हैं कि कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम, फिजिकल बीमारी फिजिकल नहीं होती, वो हमारे थॉट प्रोसेस से आती है। हर एक थॉट के साथ एक बीमारी जुड़ी होती है। जैसे ही हम उस थॉट को क्योर करते हैं, वो बीमारी ऑटोमेटिकली से उठ जाती है। क्योंकि एक एग्जाम्पल होता है कि एवरी पर्सन इज अ ह्यूमन बीइंग। कोई भी इंसान अगर ये बोलता है कि 100% किसी के साथ भी शेयर करता हूँ, वो पॉसिबल नहीं है। चाहे कोई भी रिलेशन हो सकता है आप 90% तक शेयर करें, हो सकता है आप 95% तक भी शेयर करें, लेकिन कुछ ना कुछ आपका पार्ट अनशेयर किया हुआ रह जाता है। वही थॉट जब एक बार बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, तो ये बीमारी का रूप धारण करता है। तो जैसे जैसे आप उस थॉट को क्योर करते हैं, वैसे वैसे वो चीज़ें खत्म होती जाती हैं। क्योंकि एज ए हिप्नोथेरेपी हमारी 4 टाइप की बॉडी होती है। फर्स्ट वन इज अ फिजिकल बॉडी, जो हमारी ये फिजिकल बॉडी है। सेकंड वन इज अ ऑरा बॉडी, जिसको हम अपना ऑरा बोलते हैं। थर्ड वन इज अ इमोशन बॉडी, जिससे हमारे इमोशन होते हैं, अगर हम खुश में खुश होते हैं या दुखी में दुखी होते हैं या हम रोते हैं, अपसेट होते हैं। फोर्थ वन इज अ थॉट बॉडी। एक साइकिल है, जैसे हमारे माइंड में कोई थॉट आया, अच्छा या बुरा, हमारे इमोशन डिस्टर्ब होंगे, या तो इमोशन अच्छे होंगे या इमोशन खराब होंगे। उस इमोशन का इफेक्ट आपके ऑरा पे आएगा। उस ऑरा पे जब डिस्टर्बेंस आएगा तो उस ऑरा का इफेक्ट आपकी बॉडी पे आएगा। ये पूरा साइकिल है। जैसे आप उस थॉट को रिमूव करते हैं, बॉडी इज ऑटोमेटिकली सब फिट। ओके, अब काफ़ी लोग मुझसे सवाल ये पूछते हैं काफ़ी सेमिनार्स में कि क्या हम अपना पास्ट लाइफ देख सकते हैं? हाँ, देख सकते हैं, बहुत इजीली देख सकते हैं। जब हम सपने में हर चीज़ देख सकते हैं, सारे कलर देख सकते हैं, जगह देख सकते हैं, एरिया देख सकते हैं। मैं अभी भी आप लोगों को 2 मिनट में 5 लाइन में लेके जा सकती हूँ, ओनली 2 मिनट्स। यू आर रेडी? Mike. A question from here. My name is Fidor. Yeah. And she was speaking in English. Had it been she was Norwegian, would she be speaking Norwegian? वो क्या पूछ रहे थे? हाँ। वो इंग्लिश में बात कर रहे थे, हाँ। और अगर वो कोई और जाति के होते, या कोई नॉर्वेजियन होते या स्वीडिश होते, तो क्या वो फिर वो लैंग्वेज में बात करते या इंग्लिश में ही जवाब देते? क्या उसका क्या होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो आपको ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आई एम स्वीडिश, या उन्होंने कहीं पे कुछ लैंग्वेज देखा है। क्योंकि एक ऐसा केस है, वेरी गुड क्वेश्चन, कि मेरे पास एक केस आया था। जब उस लेडी को हिप्नोटाइज किया तो वो पंजाब में गई, और जो टिपिकल पंजाबी फैमिली होती है उस टाइप से,
जब वो कोई बुक पढ़ रही थी, लेकिन वो उस बुक को नहीं पढ़ पाए। तो मैंने उनको पूछा कैसा लैंग्वेज है, उन्होंने अपने हाथ से एक्सप्लेन किया कि ऐसे ऐसा लैंग्वेज है। द लैंग्वेज इज ए गुरुमुखी, क्योंकि आपका ये लाइफ और पास्ट लाइफ दोनों एक साथ चलता है। अगर आप इनको पूछेंगे तो आप इनके साथ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी कि उन्होंने क्या देखा, कैसा महसूस किया, क्या फील हुआ। क्योंकि वो हिंदी इंग्लिश किसी में भी जो जिस लैंग्वेज में वो बात